Good morning, children. So I welcome you all in the this YouTube channel. Today we are going to deal with a very interesting parts of speech, that is the verb. The verb is also called the heart of the sentence because of its features and importance in the parts of speech. Let us see what is the verb. The verb is an action word. The verb expresses an action, feeling, existence or tells something about the subject in a sentence. Verb जो है एक action word होता है and it tells something about the subject or it is also called an action word. For example, we played cricket. So play is action here. She is sad. Okay. So the verb is showing the sadness or feeling. Akbar was a great king. So this is the example of existence. Now the type of verbs. Verbs can be divided into two parts. Main verbs, that is also called lexical verbs, and helping verbs, that is supporting verb or auxiliary verb. But widely it is known as helping verbs. So today we are going to study about the verb, and particularly we are studying about the finite verbs because it's very important. Finite verbs and non-finite also. There are actually two types of verbs: finite verbs and non-finites. So non-finites we will see later in the next video. So main verbs, there are two kinds of main verbs, as I told you, finite verbs and non-finite verbs. So mainly today we are dealing with the finite verbs, and in my next video we will deal with the non-finite verbs. Now what are the finite verbs? Finite verbs limit to the person or number of the subject and tense. It means finite verbs change their forms according to the person or number of the subject and tense. Finite verb जो है a person or number of the subject. Okay, subject का जो number है या person है उसके according वो change होता है और tense के according भी अपना form वो change कर लेता है. For example, I write a letter. ओके राइट आई के साथ में राइट आया सिंपल प्रेजेंट टेंस. ही राइट्स अ लेटर. देखिए सब्जेक्ट चेंज हो गया, आई की जगह पे ही हो गया. ओके सो सेकंड पर्सन आ गया यहाँ पे. सो वर्ब ने अपना फॉर्म चेंज कर लिया, राइट्स. सो दिस इज अ फाइनाइट वर्ब. ही रोट अ लेटर. अगेन द टेंस चेंज. ओके सो राइट का हो गया रोट. दे आर राइटिंग अ लेटर. आईएनजी फॉर्म यहाँ पे आ गया, प्रोग्रेसिव टेंस है. ओके दे आर राइटिंग लेटर्स एंड शी हैज रिटन अ लेटर. शी हैज रिटन अ लेटर. यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो शी के साथ में यहाँ पे हैज रिटन ये उसका फॉर्म वर्ब ने ले लिया है. अब देखिए देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब्स के भी दो फॉर्म्स है. ओके प्लीज ध्यान से देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. ट्रांजिटिव वर्ब एंड intransitive verb. There are two forms of finite verbs: transitive verb and intransitive verb. Now, what is a transitive verb? Transitive verb takes an object. Very simple. Transfer, action transfer करता है. It means object लेता है. It means transitive verb transfers an action to an object. An object is also called a sufferer. इसलिए उसमें sufferer लेता है. Transitive verb object लेता है और ट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंस में आपको सफरर मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा. एग्जांपल में देखते हैं. ही किक्ड अ बॉल. अभी एक्टर है, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, एक्शन किक्ड अ बॉल. ये जो एक्शन है किकिंग का, दिस इज ट्रांसफर टू अ बॉल. सो अ बॉल इज अ सफरर हियर. सो वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया वर्ब ने, दैट्स व्हाई किक्ड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. शी राइट्स अ लेटर. शी राइट्स अ लेटर. एक्शन ट्रांसफर हो रहा है लेटर पे, दैट्स व्हाई write is a transitive verb here. We have completed the work. So we have completed the work. Work object लिया है इसलिए complete is a transitive verb here. Now how to find out the objects. देखिए बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढे सेंटेंस में. मैंने जो मेरे इसके पहले का जो वीडियो है 10 सेंटेंसेस, उसके आप जाकर देख सकते हैं कि उसमें सेंटेंसेस के बारे में कंप्लीट जानकारी दी हुई है. सो अब हम जल्दी देखेंगे यहाँ पे हाउ टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट्स. The object usually answers the questions what or whom. सेंटेंस में what और whom के जो आंसर है ओके वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं.
ये व्हाट और whom का क्वेश्चन करना है हमको वर्ब को. फॉर एग्जाम्पल, he gave a new pen to me yesterday. Now he gave a new pen. Okay, gave is a verb here, it is transitive verb. इसमें दो ऑब्जेक्ट लिया है. a new, what did he give, क्या दिया है. so what का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे a new pen और whom का ऑब्जेक्ट है me. so whom did he give a new pen, किसे दिया, तो to me. so me is also called this type of, okay, objects are also called standard objects. now what is in intransitive verb. transitive verb तो हमने देख लिया. transitive verb takes an object. transitive verb transfers action, okay, to object or sufferer. now what is intransitive verb. intransitive verbs don't require objects. very important thing, उसमें ऑब्जेक्ट की उसको आवश्यकता नहीं है. इट मीन्स दे डू नॉट ट्रांसफर एक्शंस, वो एक्शन ट्रांसफर नहीं करता है. दैट्स व्हाई इट इज intransitive verb. the action ends with the subject only. second point, transitive verb express the action by themselves and make the complete sense. उसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं होती है, वो खुद ही एक्शन को ओके कंप्लीट कर देता है और कंप्लीट सेंस आ जाता है. फॉर एग्जांपल देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट. द सन राइजेस, ओके, कोई एक्शन यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है. सन इटसेल्फ इज अ सफरर. इन द ईस्ट ये जो है ये पार्ट है, दैट इज प्लेस. शी लाफ्स लाउडली, ओके, शी लाफ्स, वो खुद ही हंस रही है. ओके, नोबडी इज सफरर हियर. शी लाफ्स लाउडली, लाउडली जो है वो एडवर्ब है. ओके, ही रैन फास्ट, कोई एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, नो ऑब्जेक्ट देयर. एंड बर्ड्स फ्लाई. सो राइजेस, लाफ्स, रैन, fly. Okay, these are intransitive verbs. Now some intransitive verbs can be used transitively. अब ट्रांजिटिवली कैसे यूज होता है इंट्रांजिटिव अगर वर्ब है, ट्रांजिटिवली हम उसको ट्रांजिटिव वर्ब बना सकते हैं उसमें ऑब्जेक्ट ऐड करके. एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल है इंट्रांजिटिव का, शी लाफ्स. इंट्रांजिटिव वर्ब है. अब यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब किस तरह से हो गया, शी लाफ्स एट मी. एट प्रीपोजिशन लगा दिया हमने और ऑब्जेक्ट लिया है मी. शी लाफ्स एट मी. he ran fast. he ran a race, transitive verb. he ran fast intransitive हो गया. he ran a race transitive. she reads, एक्शन कंप्लीट हो गया यहाँ पे. she reads, ओके, कोई सफरर नहीं है. she reads a book, यहाँ पे a book ऑब्जेक्ट की वर्ब में दिया है. सो जो इंट्रांजिटिव वर्ब है दैट कैन बी यूज एज ट्रांजिटिव वर्ब. he looked happy, ओके, इंट्रांजिटिव वर्ब है. and he looked at me, again preposition हमने लिया at यहाँ पे. so this intransitive verb look, okay, is changed to transitive verb as looked at me. please note that some transitive verbs can be converted into transitive verbs by adding a preposition to them. for example, the police looked into the matter. again the preposition यहाँ पे लिया हमने into, okay, so the matter becomes an object here. Now we move to the next. State whether the verbs given in the following sentences are transitive or intransitive. देखिए हमने जो अभी तक देखा है अबाउट द ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, मैंने आपको बताया था, अब फिर से रिवाइज करेंगे. ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट, ओके. इंट्रांजिटिव वर्ब डजंट टेक एन ऑब्जेक्ट. इट मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांसफर्स एक्शन while intransitive verb doesn't transfer action but they make the same some sense. Okay, see the examples here. I saw a lion. This is transitive verb क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है. what did I see, okay, so answer is a lion. what का ऑब्जेक्ट है a lion. she danced in the party. this is intransitive verb. she danced herself. she danced in the party. okay, कोई यहाँ पे सफर नहीं है ना तो ऑब्जेक्ट है. that's why it is intransitive verb. he stutters while speaking. intransitive verb है. he stutters while speaking. बात करते समय वो स्टटरिंग करता है. so इससे कोई सफरर यहाँ पे नहीं है. so this is stutter is intransitive verb. she broke a window glass. this is transitive verb because she broke a window glass. okay, a window glass is a sufferer here. that's why, okay, break is a transitive verb. the earth moves around the sun. again intransitive verb. no, okay, कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है. she looks beautiful. again look is a intransitive verb. okay, now see the auxiliary verb. so हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को यहाँ पे ठीक ढंग से देख लिया है. आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड. सो वर्ब के हमने दो पार्ट देखे थे. एक था मेन वर्ब और दूसरा ऑक्सिलियरी वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब. मेन वर्ब में हमने फिर से दो पार्ट देखा है.
finite verb and non-finites. Okay, finite verb and non-finites. So finite verb में हमने देखा है transitive verb and intransitive verb. Non-finite जो है, that is very important part. I will take in the other video. Okay. So now the second part of the verb is auxiliary or supporting or helping verb. एक ही मीनिंग है दोनों का, auxiliate और support और help. this support करना है. And auxiliary verb is also called supporting verb or helping verb. An auxiliary verb helps or supports a main verb to form tense, mood और voice. अब ये किसको हेल्प करता है, किसको सपोर्ट करता है? सो ये टेंस फॉर्म करने के लिए मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, मूड और वॉइस फॉर्म करने के लिए चेंज होता है. इट ऑल्सो हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस. सो क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए भी इसका यूज होता है. ये मेन वर्ब को हेल्प करता है. किस तरह से करता है हम देखेंगे. ऑक्सिलियरी वर्ब्स आर पुट इनटू कैटेगरीज. दो कैटेगरीज में इसको रखा गया है, प्राइमरी ऑक्सिलियरी एंड मॉडल ऑक्सिलियरी. प्राइमरी ऑक्सिलियरीज कौन कौन से है? इज, एम प्रेजेंट का है, आर, इज, एम आर वाज और वेयर पास्ट का है, डू, डज, डिड, has, have, had. These are called primary auxiliary. Is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, and had. These are called primary auxiliary. Now see the model auxiliary. Will, shall, would, should, may, might, must, can, could, ought to, need, dare, and used to. These are called model auxiliaries. Okay, see the example here. सपोर्टिंग कैसे करता है, हेल्प कैसे करता है मेन वर्ब को. ओके, दे प्लेड क्रिकेट. सो प्लेड इज अ मेन वर्ब हियर. इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. अगर हम इसका क्वेश्चन बना देते हैं, व्हाट डिड दे प्ले. सो डिड जो है हेल्प कर रहा है क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए. ओके, या निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी हेल्प करता है, जैसे दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, जो कि निगेटिव फॉर्म करने के लिए भी हेल्पिंग वर्ब ओके मेन वर्ब को सपोर्ट करता है. सो सेकंड एग्जांपल देखिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट. सो आर इज हेल्पिंग वर्ब हियर, सपोर्ट कर रहा है. इट इज आल्सो कॉल्ड लिंकिंग वर्ब, प्ले मेन वर्ब को. सो दे आर प्लेइंग क्रिकेट टू फॉर्म द प्रोग्रेसिव टेंस. ओके, कंटिन्यूअस टेंस में हेल्प कर रहा है मेन वर्ब को. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी हैव फिनिश्ड द वर्क. यहाँ पे हैव फिनिश्ड, सो हैव हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर. ओके, और फिनिश्ड मेन वर्ब है. सो have is supporting main verb finish to form present perfect tense here. Now next example, the parents shall visit on Sunday. So यहाँ पे shall helping verb है and visit main verb है on Sunday. I do not like tea. यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हेल्पिंग वर्ब ओके सपोर्ट कर रहा है मेन वर्ब को, do not like tea. ओके, नेक्स्ट है, does she know about it. डज हेल्पिंग वर्ब है और नो जो है मेन वर्ब है. क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए भी हेल्पिंग वर्ब सपोर्ट करता है मेन वर्ब को. नेक्स्ट, प्लीज नोट दैट ओके सम पॉइंट्स ओके हमको याद रखना है. प्राइमरी ऑक्सिलियरी कैन बी यूज्ड एज फाइनाइट और मेन वर्ब. दिस वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें. जो प्राइमरी ऑक्सिलियरीज है वो फाइनाइट वर्ब और या मेन वर्ब बोल के भी काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ डॉक्टर. ओके, इंडिपेंडेंट वर्ब है इज यहाँ पे. ही इज अ डॉक्टर, कंप्लीट सेंस हो रहा है यहाँ पे. ओके, आई हैव 2 brothers. हैव. ओके, सो प्राइमरी ऑक्सिलियरी. he does it nicely. he does it nicely. ओके, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है. ओके, प्राइमरी ऑक्सिलियरी यहाँ पे do does did हमने देखा था. so he does it nicely. she had an idea. ओके, so have has had हमने देखा था प्राइमरी ऑक्सिलियरी में. सो इंडिपेंडेंट वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है, शी हैड एन आइडिया. सो ये हमको नोट करना है. ओके, फॉर्म्स ऑफ द मेन वर्ब. अब मेन वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं एक्चुअली. मेन वर्ब के देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ द मेन वर्ब. दैट इज आल्सो कॉल्ड कंजुगेशंस ऑफ वर्ब. टू कंजुगेट मीन्स टू फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म में उसको रखना है. There are actually 4 forms of the main verbs. They are also called the conjugations of verb. Okay, so present, past and past participle. These are the 3 main forms of the verb, and fourth one is present participle, that is ing form. उसको भी हम यहाँ देखेंगे.
Okay. So present is widely known as V1, past V2, past participle V3. Okay. जैसे go, went, gone and ing form going. Okay. So ये 4 फॉर्म्स आपको याद रखना है. मेन वर्ब्स के 4 फॉर्म्स है, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल इज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये जो फोर्थ फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट वी विल स्टडी ओके thoroughly in the when we study non finites. Okay, present participle, past participle and gerund and infinitive. Okay, that I will take separately. Now strong and weak verbs. Okay, कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होते हैं, कुछ वीक वर्ब्स होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे. A strong verb spells its all forms differently by changing the vowel of a base form. तीनों फॉर्म्स अलग अलग होंगे, वॉवेल्स में चेंज किया जाता है. और ये जो स्ट्रॉन्ग वर्ब है इनकी तीनों फॉर्म्स अलग होती है. फॉर एग्जांपल डू, डज, डू या डज इसका पास्ट हो गया डीड और पास्ट पार्टिसिपल हो गया डन और प्रेजेंट पार्टिसिपल है डूइंग, इसको आईएनजी फॉर्म लगा दिया. ओके, डू, डीड, डन, डज, डीड, डन. टेक, टुक, टेकन, देखिए तीनों फॉर्म्स ओके चेंज है. टी ए के ई टेक, यहाँ पे टी डबल ओ के टुक और टी ए के ई एन टेकन, मीन्स वॉवेल्स में चेंज करके इसके फॉर्म हो रहा है. सो प्रेजेंट टेक, पास्ट टुक, पास्ट पार्टिसिपल टेकन और आईएनजी फॉर्म है इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल टेकिंग. गो, वेंट, गॉन, गोइंग. टीयर, टोर, टर्न एंड टीयरिंग. नाउ वीक वर्ब क्या होता है, वो तो हो गया स्ट्रॉन्ग वर्ब. Past and past participle forms of a weak verb can be made by adding ed, d और t. जिन verbs को, मेन verbs को ed लगाकर या d लगाकर या t लगाकर उसके past और past participle forms बनाए जाते हैं, those verbs are called weak verbs. For example, ask, asked, asked, दोनों forms सेम है. ओके, ed लगा है यहाँ पे और asking. बेंड, बी ई एन डी, बेंड, लास्ट में सिर्फ टी किया है बेंड का, बेंड, बेंट, बेंट. ओके, और बेंडिंग. डील, यहाँ पे भी लास्ट में टी ऐड किया है. ओके, सफिक्स किया है इसको टी. डील, डील्ट, डील्ट और डीलिंग. ओके, सो ऑल ओके 3 फॉर्म्स आर डिफरेंट. दैट इज कॉल्ड सॉरी ईडी और टी, ईडी ई और टी लगाकर यहाँ पे इसके फॉर्म चेंज किया है, दैट इज कॉल्ड वीक वर्ब. और जिसके तीनों फॉर्म डिफरेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वर्ब. ओके, नाउ एक्सेप्शंस, सम एक्सेप्शंस आर देयर. ओके, कुछ अपवाद होते हैं. हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस. सम वर्ब्स हैव देयर ऑल फॉर्म्स अलाइक. कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसके तीनों फॉर्म सेम है, जैसे पुट, 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 यूटी पुट, कट, कट, कट. ओके, लाइक दैट. Some verbs have their past and past participles alike. कुछ verbs ऐसे हैं जिनके past और past participle एक जैसे होते हैं, जैसे ed लगा दिया है, ask, ask, ask. Okay. Note: the students are requested to memorize the different forms of the main verb. ये आपको बच्चों याद ही करना पड़ेगा, different forms of the main verb. Okay, present, past and past participle. So near about आपके पास 200 से 250, 200 to 300, 250 और 300 words main verbs you should know along with the conjugations. Okay, so this will be a great help for you to learn English to better understanding and to comprehend the passage also, and in writing skill also it is very much required. That's why I told you earlier this is a very important part of the parts of speech and a sentence. Okay, so in our next video, okay, I will deal with the non-finite part. Okay, that we left here. वर्ब का ही 2 फॉर्म्स जिसे हमने बताया था, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. सो नॉन फाइनाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉन फाइनाइट्स में होता है टू इन्फिनिटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हमने अभी देखा, उसका यूज कैसे करेंगे दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड द पास्ट पार्टिसिपल, यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, gerund. Okay, so these are very important topic. So please share my video to your friends. Okay, subscribe my video to get the notification whenever I upload a new video. Thank you very much. Thank you for watching. Thank you.